Hello everyone, I welcome you all to the legal sessions once again. Today in this video, we'll be talking about frequently asked questions regarding moot court competitions from the law students, and I will revise all the topics that we have covered in my moot court series. I will link all the videos in the description. You can check them out. They are separated topic-wise topic and I've covered all the important topics. So this video is going to be very special where in short, I will discuss all the important topics for your moot court preparation, and this is going to be a one-shot guide for your moot court preparation. So let us begin. So the very first question that I wish to answer that a lot of students has is what exactly a moot court is. As I told you in my previous video as well, moot court is basically a stimulated court जहाँ पे you act like an advocate. आपको एक प्रपोजिशन दिया जाता है, आप उस प्रपोजिशन को पढ़ते हो, उसे हम मूट कोर्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं, फैक्ट शीट भी कहते हैं, जहाँ पे एक स्टोरी होती है, उसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और आपको स्टोरी पढ़ के उन लीगल इश्यूज को फिगर आउट करना होता है, जिसके बेसिस पे आप अपने इश्यूज फ्रेम करते हो. So basically on that proposition you have to prepare a memorial, and that memorial is argued as your oral arguments in your oral rounds. So basically रियल कोर्ट में और मूट कोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि रियल कोर्ट में हमारे पास रियल क्लाइंट होते हैं और एक रियल केस होता है, जबकि मूट कोर्ट में हमें वैसे ही एक फिक्टिशियस केस दिया जाता है जिसको हम रियल मान के एक ही दिन में आर्ग्यू करते हैं एंड अपनी एडवोकेसी स्किल्स का प्रेजेंटेशन करते हैं. सो दिस इज योर मूट कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूट कोर्ट ओनली फॉर लिटिगेशन स्टूडेंट्स? No, moot court is not just for students who wish to join litigation in future. Even if you wish to join corporate law, policy making, judiciary, or even you wish to join academics, moot court not just gives you advocacy skills, it gives you so much more. You should always try doing at least one or two moot courts. It will give you not just how you think and interpret law, but a lot of other things. Your drafting skills will improve, your research skill will be improved. So it's accumulation of a lot of skills and learnings that you develop during your moot court journey. So moot court is not just for litigation or people who wish to join litigation in future, it's for everybody. So the next question is, when should I start doing moot court? Now this is a very confusing question that a lot of student has कि हमें कब से मूट कोर्ट करना शुरू करना चाहिए, हमें फर्स्ट ईयर से करना चाहिए, सेकंड ईयर से करें, थर्ड ईयर से करें, अभी हमारे पास लॉ सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो हमें कब से शुरू करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स सी, इवन इफ यू डू नॉट हैव लॉ सब्जेक्ट्स, इट्स ओके. I would suggest in your first year, second year, you can start doing moot courts. You can start with intra-college moot courts, जहाँ पे you get little exposure कि आपको कैसे present करना है, and environment काफी comfortable होता है, तो आपका जो डर है moot court को लेके वो निकल जाएगा. So you should start it from your first year itself or second year as well. Next question, how do I choose the right moot? I've already made a video on this question. You can check that out. I'll put the link in the description. How do you choose the right moot is you decide which subject you are interested in or which subject that you wish to learn. Who is organizing that moot court, because that also matters, and which college or after that moot court what benefits you get because the internships that they offer or any publication that they offer. So exposure here matters. So based on these criterias you can choose the right moot. Next question is, how do I read a moot proposition properly? Again, reading a moot proposition is not just like reading any other law book or any fiction book. There you have to be very mindful of what the facts are, because just to distract you or to add up to your proposition, they will put in a lot of irrelevant facts as well to complete the story. So, but you don't have to get distracted. आपको relevant facts अलग करने हैं, irrelevant facts अलग करने हैं, और इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैंने अपने वीडियो में बताई है. आप वो वीडियो जरूर देखना. You'll know how do you read your moot proposition properly. And next question is, how are legal issues framed? अगेन लीगल इश्यूज फ्रेम करने के लिए पहले प्रपोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
और लीगल इश्यूज अगर दिए हुए हैं तो स्टिक टू दैट. इफ द लीगल इश्यूज आर नॉट गिवन, इफ यू आर फ्रेमिंग, मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ जुरिस्डिक्शनल और अ मेंटेनेबिलिटी इशू, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे यू justify the jurisdiction of the court or ensure the maintainability of the petition that you are filing, right? So एक बार ये issue clear होता है, उसके बाद we move on to the next issues that are involved. How do you frame the legal issues? When you are done reading the facts, जब आपके relevant facts, irrelevant facts अलग हो गए हैं, now you know what are the relevant facts are involved, and based on those relevant facts, you pick out कि कौन सा law impact हो रहा है, on based on that you frame your legal issues. इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, you can check that out to understand how do you frame legal issues in detail. Next question is, how much research is enough? Personally, when I used to do my moot court, I was always confused about research. कहाँ से करना है, कितने case laws enough है, इतने डाल दे या और case laws चाहिए. So research is something that is never ending. It starts from day one and it keeps on happening till our oral rounds. But enough research नाम की कोई चीज नहीं होती है. Relevant research and relevant material नाम की चीज होती है. So make sure that you are putting in relevant material. Once you are done drafting your issues, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस लॉ पॉइंट पे रिसर्च करनी है, क्या केस लॉ मुझे चाहिए, क्या मैं पॉइंट पुट अप करना चाह रहा हूँ. So based on these things, you do your research. And instead of putting irrelevant case laws की 50-60 case laws की लिस्ट हमने लिख दी है लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज में to look impressive और बहुत सारे citations डाल दिए हैं, trust me, oral rounds में you will get stuck because judges can ask you questions based on those judgments that you have put in. They can ask you facts, they can ask you ratio of that case. So if you are not sure and if you have not read that case and if it's irrelevant, avoid putting that case because वो आपको बस आगे जाके और difficulties आपके लिए create करेगा. So हमेशा make sure that you are putting in relevant case laws. अगर 3-4 case laws भी है तो भी it's enough, but relevant होने चाहिए. How to draft a good memorial. How to draft a good memorial is again a very important question that I used to hear from my juniors as well. How do you draft a good memorial is, आपको कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखना है. पहली चीज कि आप उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर दें. पहली चीज हेडिंग के साथ जाएगी और सब हेडिंग्स को लिखोगे अच्छे से. आप अपने इशू को सब इश्यूज में डिवाइड करोगे एंड हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. सारी चीजें, इंडेक्स, अथॉरिटीज, फैक्ट्स, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एडवांस आर्ग्यूमेंट्स, प्रेयर, सारी चीजें स्ट्रक्चर में लिखोगे. ऑल्सो जो आपको ब्रोशर मिलता है उसमें देयर आर सेट ऑफ रूल्स जो ऑर्गेनाइजर्स बताते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करने हैं. वो सारे रूल्स आपको मेंटेन करने हैं. फॉन्ट साइज हो गया, साइटेशन का फॉर्मेट हो गया, एडिटिंग कैसे करनी है, उसका लैंग्वेज क्या रखना है, किस हिसाब से, सारी चीजें उन्होंने लिखी होती है. इफ यू फॉलो ऑल दोज रूल्स एंड पुट इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. ऑल्सो लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी रखो उसमें, क्योंकि क्लैरिटी मैटर करती है. फैंसी इंग्लिश या फिर हैवी वर्ड्स यूज करना, ऐसे जार्गन्स जो शायद कभी ओरल आर्ग्यूमेंट्स के वक्त हमें खुद को ही ना समझ आए, ऐसा मत करना. These things will help you draft a good memorial. Next question is, how should oral arguments be prepared? Oral arguments prepared करने के लिए एक चीज याद रखो, when you are done drafting your memorial, आपका memorial submit हो जाता है, so आपके पास कुछ 5-6 दिनों का या उससे ज्यादा का टाइम होता है. Read your memorial every day. इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों लिखे हैं और किस हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिखा है. अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इसको कैसे आंसर करूंगा, या मुझसे ये चीज पूछी गई तो इसका मेरे पास आंसर है कि नहीं. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर ओरल आर्ग्यूमेंट्स. आपको मेमोराइज नहीं करना है, एक फेयर आइडिया रखना है कि मैंने ये चीज लिखी है, ऐसे ऐसे लिखी है, एंड अगर मुझसे ऐसा पूछा गया तो दिस इज हाउ आई विल प्रेजेंट दिस पॉइंट. सो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स. मेमोराइज मत करो ओरल आर्ग्यूमेंट्स को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिबटल एंड सर रिबटल. सो ड्यूरिंग योर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, व्हेन यू आर डन आर्ग्यूइंग, व्हेन वन पार्टी, बोथ द पार्टीज आर डन आर्ग्यूइंग, द पिटिशनर और द प्लेंटिफ, दे स्टार्ट विद रिबटल. रिबटल में बेसिकली क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. जब
जो ऑपोजिट पार्टी है उन्होंने जो भी अपने आर्गुमेंट्स रखे हैं उसको सुनने के बाद उसके बेसिस पे अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप उनसे पूछते हो, दैट इज योर रिबटल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें लॉ पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन करना है, फैक्ट्स पे या उनके मेमोरियल में कोई ग्रामेटिकल एरर है या उन्होंने एक पॉइंट इधर उधर कुछ लिख दिया है या फॉर्मेटिंग सही नहीं है। सो इन चीजों को हमें नहीं पॉइंट आउट करना है, हमें लॉ पॉइंट पे क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस इज योर रिबटल and sir rebuttal is when they cross question. This is only on the discretion of the judges. अगर वो अलाउ करते हैं तो ये राउंड्स होते हैं अगर टाइम बचा है तो, बट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें लॉ पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन करना है, हम फैक्ट्स या फिर फॉर्मेटिंग इश्यूज, ग्रामेटिकल इश्यूज को नहीं पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मूड्स शुड अ लॉ स्टूडेंट डू? Okay, so there is no fixed number decided by anyone कि आपको 10 करने हैं, 5 करने हैं। Depending upon you, your interest and other factors, आप number of moot courts कर सकते हो। But if you take my advice, I would say at least one in a year, एक तो एक साल में करना ही चाहिए, फिर वो चाहे इंट्रा हो, इंटर हो, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट अगर ऑफलाइन करो तो ज्यादा बेटर है बिकॉज दिस विल कीप ऑन एडिंग अप टू योर स्किल्स। आप जितना इसे प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ये प्रैक्टिस का गेम है, जितनी इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने आपको बहुत मजा आएगा एंड यू विल ऑल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस एंड एडवोकेसी स्किल्स। आपकी सोचने की शक्ति जो है वो बहुत शार्पन होगी बिकॉज वेन यू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड यू आर आंसरिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द जजेस, यू डेवलप दिस थिंकिंग एबिलिटी कि वहां पे कैसे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड आपको रेलेवेंट भी साउंड करना है। सो ऑल ऑफ दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। सो एटलीस्ट एक मूट एक साल में करना चाहिए, दैट्स अ फेयर नंबर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू जजेस रियली लुक फॉर? I've already made a video on this कि जजेस क्या चाहते हैं। जजेस फैंसी इंग्लिश सुनना नहीं चाहते हैं, उन्हें 50 केस लॉस की लिस्ट नहीं देखनी है, उन्हें सिंपल चीज देखनी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉ और फैक्ट को लेके कितनी है और आप कितने क्लियरली और कॉन्फिडेंटली उसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, उसे आपने कितने नीटली लिखा है मेमोरियल में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जब वो क्वेश्चंस आपसे करते हैं वो कितनी क्लियर है। वो बस इतना देखना चाहते हैं और वो इंग्लिश या जार्गन्स या फिर लैटिन मैग्जिम्स वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। बस वो सारी चीजें भी अगर आप यूज कर रहे हो तो कितनी रेलेवेंट है आपके केस से, उतना ही वो चेक कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग, व्हाट इफ आई लूज अ मूड कोर्ट? सो इट्स ओके if you lose a moot court. As I said, losing a moot court is not failure, it's a feedback. It reflects कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी इस बार और नेक्स्ट टाइम आप उस पर कैसे काम करोगे और उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारी चीजें परफेक्ट जाती हैं, नहीं जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कभी आपको समझ आएगा कि आपने ड्राफ्टिंग में कुछ मिस्टेक करी, कभी आपको समझ आएगा कि ओरल राउंड में आपने मिस्टेक करी। और जब बहुत सारी टीम्स आपके साथ compete करती हैं, आप ओरल राउंड्स में जब बहुत सारी टीम्स के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं तो उनका मेमोरियल जब पढ़ोगे, उनको आर्ग्यू करते सुनोगे, तभी भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सो लूजिंग अ मूड कोर्ट इज, आई कंसिडर एज it's a full baggage of learnings, जहां नेक्स्ट टाइम उन लर्निंग्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो लूजिंग अ मूड कोर्ट, इट्स अ फीडबैक, so take it as a feedback. Now I have come to the end of this video where I've answered all the frequently asked questions regarding moot court, and I've also revised all the topics that I covered in this moot court series. Now I am putting an end to this series. I hope मैंने सारे important topics cover किए हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया है या फिर किसी टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, कमेंट्स में मुझे बताना, I'll try to answer. And also I am providing a sample memorial जो आप अपने moot courts के लिए use कर सकते हो for your reference. I'll put the link in the description and I've added links of all those videos जो मैंने बनाए हैं आपके लिए
सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे वीडियोस को चेक कर लेना। कोई भी ऐसा टॉपिक, मैंने सारे स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाया है, कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप I've helped in this series, has helped you and will help you in future as well. Thank you so much and see you in the next video.